Good morning, class. Welcome to your online class, and hope you all are doing well. And take care of yourself and your family also in this crucial period. So, as you all are taking classes online, so as we are taking care of your studies, you should also take care of your health and your family's health. All right, and eat healthy and stay safe and stay home. So let's start with the new topic, that is vocalizations. Continuing with the main topic, that is NPE 1986. We are just going to finish this chapter 5 of NPE 1986, in which we are going to know about what type of recommendations and what type of changes committee has made, right? So till now we have studied many kinds of suggestions or recommendations, we can say, that committee has already given regarding SC category, regarding ST category, and regarding the study facilities which will be providing to the ST categories and the remote areas, and what type of subjects should be included at what level, like secondary level, higher level. इस टाइप के हम लोगों ने सारी चीज़ें कल पढ़ ली थी. अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एंड वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ वोकलाइजेशन. इसका मैंने कल थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, दैट व्हाट इज़ वोकलाइजेशन. Vocalization is that term which you can say, or which you can understand by like this, कि vocalization एक ऐसा टर्म है जिसके थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये एक, कह लीजिए, स्पेसिफिकेशन हमें किसी भी सब्जेक्ट में देता है. अगर मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो दिस वोकलाइजेशन या थ्रू वोकलाइजेशन यू कैन take certificate, you can do further studies in this special subject. जिससे क्या होगा कि जैसे आप 12th अपना पास करेंगे, तो थ्रू दैट सर्टिफिकेट और थ्रू दैट लर्निंग you can earn by yourself, and you can be independent, like, right? So let's start with this. It says that the introduction of a systematic will planned and rigorously implemented program of vocational education is crucial in the proposed educational reorganization. These demerits are meant to develop a healthy attitude amongst students towards work and life, to enhance individual employability, to reduce the mismatch between the demand and supply of skilled manpower, and to provide an alternative for those in landing to pursue higher education without particular interest or purpose. Efforts will be made to provide children at a higher secondary level with genetic vocational courses, and which cut across several occupational fields and which are not occupational specifically. यानी कि ये जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, ये मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं. ये आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट में आप अपना इन्हांस करना चाहते हैं या अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप ये कोर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है सिंगिंग का, तो ही और शी कैन गो फर्दर फॉर दिस hobby and get a certificate, so that after completing his or her 12th studies, he or she can earn money from that, right? And further they say that vocational education will also be a distinct stream intended to prepare students for identified occupations spanning several areas of activity. These courses will ordinarily be provided after the secondary stage, but keeping the scheme flexible, they may also be made available after class 8. तो बेसिकली यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज की बात कही जा रही है कि कब से वो वोकेशनल कोर्सेज
बच्चे अपना शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्लास 8 के बाद से अपने वोकेशनल कोर्सेज को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 8 एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे बच्चा समझने और चीज़ों को पहचानने लगता है कि हाँ उसे क्या करने की ज़रूरत है। तो इसलिए क्लास 8 से शुरू करते हैं। फिर ये कहते हैं कि हेल्थ प्लानिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट शुड ऑप्टिमली इंटरलॉक्ड। Health planning and health service should be optimally interlocked with the education and training of appropriate categories of health manpower through health related vocational courses। यानी हेल्थ से रिलेटेड यानी मेडिकल की तरफ से भी वोकेशनल कोर्सेज को शुरू करना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी हेल्थ के बारे में भी जानें और उसके साथ साथ ऐसे भी कोर्स कर सकें जिससे कि वो आगे अपनी अर्निंग को शुरू कर सकें। Health education at the primary and middle levels will ensure the commitment of the individual to family and community। जब हम शुरुआत से ही हेल्थ से रिलेटेड शिक्षा बच्चों को देना शुरू कर देंगे तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अपने फैमिली के प्रति एक केयर करने वाली जो फीलिंग है वो जागेगी, और अपने प्रति भी यानी अपनी हेल्थ के प्रति भी वो जागरूक होंगे। ये कब होगा? जब हम छोटेपन से यानी प्राइमरी लेवल से ही हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाने लगेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये कहते हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस विल बी द responsibility of the government as well as employees in the public and private sector. The government will, however, take special steps to cater to the needs of women, rural and tribal students and the deprived actions of society। तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि वोकेशनल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए हमें किसका साथ लेना चाहिए? हमें गवर्नमेंट का साथ लेना चाहिए, और गवर्नमेंट ही पूरी रिस्पॉन्सिबल होगी इस फील्ड को डेवलप करने के लिए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और कोर्स से रिलेटेड हो। कोई भी वोकेशनल कोर्स हो उसको डेवलप करने के लिए की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। चाहे मतलब कोई भी कोर्स आप शुरू कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई एम्प्लॉय को आप अपॉइंट कर रहे हैं, देन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑल्सो बी ऑन फुली गवर्नमेंट। ठीक है। Then they say that graduates of vocational courses will be given opportunities under predetermined condition for professional growth, career improvement and lateral entry into courses of general, technical and professional education through appropriate bridge courses। तो graduates of vocational courses will given opportunity, यानी जो जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन भी आपने कर लिया है और कोई एक वोकेशनल कोर्स भी कर लिया है, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपना जो प्रोफेशन है उसको आप ग्रो कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद ये कहते हैं नॉन फॉर्मल, फ्लेक्सिबल एंड रीड बेस्ड vocational programs will also be made available to collaborates youth who have completed primary education, school dropouts, persons engaged in work and unemployment or partially employed person। Special attention in this regard will given to women। तो अब इन्होंने कहा कि हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी शुरू करेंगे, जैसा कि कल हम लोग ने पढ़ा था कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी हम लोगों तक शिक्षा को पहुंचाएंगे। जैसे जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं या जो बच्चे किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कोई किसी भी रीज़न की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी हम लोग पढ़ाई प्रोवाइड करवाएंगे। तो स्पेशली ऐसे बच्चों पर या ऐसे कैटेगरी के लोगों को भी हमें ध्यान में रखना है। फिर ये कहते हैं टेरिटरी लेवल कोर्सेज विल बी ऑर्गेनाइज फॉर द यंग हु ग्रेजुएट फ्रॉम द हायर सेकेंडरी कोर्सेज ऑफ द एकेडमिक स्ट्रीम एंड मे ऑल्सो रिक्वायर वोकेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक विद इन द लिमिट भी कोर्सेज हम लोग शुरू करवाएंगे। जैसे एक मान लीजिए कि कोई टेरिटरी है और उस टेरिटरी के अकॉर्डिंग कोई ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं, तो वो भी काम आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। इट इज़ प्रपोज्ड दैट वोकेशनल कोर्सेज कवर 10% ऑफ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स बाय 1995 and 25% by 2000।
Steps will be taken to see that a substantial majority of the products of vocational courses are employed or become self-employed. Review of the courses offered would be regularly undertaken. Government will also review its recruitment policy to encourage diversification at the secondary level. तो बेसिकली इन्होंने पहला जो अपना मोटिव बनाया था वो ये बनाया था कि 10% जो हायर एजुकेशन बच्चे अपनी मतलब पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और उसका 10% एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, और 2000 तक हम कोशिश करेंगे कि 25% टोटल हायर एजुकेशन जो बच्चे कर चुके हैं उनको हम 25% तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें. ठीक है, तो ये सब कुछ था आपका वोकेशनल वोकलाइजेशन के लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में. तो हायर एजुकेशन क्या है? हायर एजुकेशन प्रोवाइड्स पीपल विद एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन द क्रिटिकल सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल फेसिंग ह्यूमैनिटी. तो मतलब बेसिकली हायर एजुकेशन एक ऐसी स्टेज है जहाँ से मतलब हायर एजुकेशन पूरा करने के बाद आप फिर अपने कमाई की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, यानी कमाई की तरफ बढ़ने लगते हैं. यानी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यू आर फुली रेडी टू अर्न मनी. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे आप केपेबल होते हैं पैसे अर्न करने के लिए, तो वो एज ऐसी होती है जहाँ पे आप सब कुछ समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. यानी इकोनॉमिकली भी आपका क्या कह लेते हैं कि जो मेंटलिटी होती है, जो मेंटालिटी होती है आपकी, वो ग्रोथ हो जाती है. चाहे कल्चरल वाइज हो, चाहे मॉरल वाइज हो, चाहे स्पिरिचुअल वाइज हो या सोशल वाइज हो, किसी भी तरीके की आपकी जो समझ होती है वो हायर एजुकेशन तक पूरी हो जाती है. यानी हर चीज़ को आप गहराई से समझ सकते हैं. इसीलिए ये एज एक ऐसी होती है जहाँ पे आप रेडी होते हैं कमाई करने के लिए या अर्न करने के लिए. ठीक है, फिर ये कहते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द unprecedented explosion of knowledge, higher education has to become dynamic as never before, constantly enlarging unchanged areas. तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब हायर एजुकेशन पे बच्चा पहुँच जाता है तो उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है जिसका उसने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा, और कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं कि एक नया उसका पर्सनालिटी डेवलप होके आती है. ठीक है, there are around 150 universities and about 5,000 colleges in India today. In view of the need to effect an all-round improvement in the institutions, it is proposed that in the near future, the main emphasis will be on the consolidation and of expansion of facilities the existing institutions. तो मतलब बेसिकली इनका यही कहने का मतलब है कि अभी जब 1986 की ये बात कर रहे थे, उस वक्त की बात कर रहे थे कि अभी हमारे पास 150 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 5000 कॉलेजेस हैं इंडिया में, और ये कहीं ना कहीं हमारा जो दिनचर्या है उसको और आगे बढ़ाने में मदद करेगा, और हमें और ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस की मदद लेनी पड़ेगी. यानी हमें अपने देश में और ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे जिससे कि जो नॉलेज का जो एक एरिया है वो बढ़ सके और बच्चे अपने जहाँ कहीं भी उनका सूटेबल जगह हो वहाँ से वो क्या कहते हैं कि पढ़ाई कर सकें. फिर उसके बाद ये कहते हैं अर्जेंट स्टेप्स विल बी टेकन टू प्रोडक्ट अ सिस्टम ऑफ डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन का मतलब हो गया जब कोई चीज़ नीचे आनी शुरू हो जाती है. तो यहाँ पे डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्टेप्स किसके प्रति लिए जाएंगे, हमारे एजुकेशन सिस्टम के प्रति लिए जाएंगे जो कि दिन पे दिन डिग्रेड हो रहा था, यानी नीचे आ रहा था. तो उस नीचे आने को रोकने के लिए, यानी जो उसकी गिरावट हो रही थी, एजुकेशन सिस्टम की जो गिरावट हो रही थी उसको रोकने के लिए यहाँ पे स्टेप्स इन्होंने कुछ बताए हैं. ये कहते हैं कि इन व्यू ऑफ मिक्स्ड एक्सपीरियंस विद द सिस्टम ऑफ एफिलिएशन, autonomous colleges will be helped to develop in large numbers
until the affiliating system is replaced by a free and more creative association of universities with colleges. Similarly, the creation of autonomous departments within university on a selective basis will be encouraged. Autonomy and freedom will be accompanied by accountability. तो बेसिकली इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम मतलब अपने देश में हम ऐसे कॉलेजेस शुरू करेंगे ऑटोनॉमस बेस जिनका होगा, यानी वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करवाएंगे, अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेंगे और अपने अकॉर्डिंग करिकुलम को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल मतलब अंडर प्रेशर उनको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर ये कहते हैं कि कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स विल be designed to meet the demands of specialization. Better special emphasis will be held on linguistic competence. This will be increasing flexibility in the combination of courses. तो यहाँ पे इन्होंने जो कोर्स है उसको फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कही है और इन्होंने कहा है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में हम और बढ़ावा करेंगे, यानी कि जो द्विभाषा है, यानी कि कह लीजिए कि जो भाषा है उसमें हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई को हम ऐसी भाषा में प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि किसी भी राज्य के बच्चे को या किसी भी जगह के बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। मतलब डे बाय डे हम एजुकेशन सिस्टम को इजी और फ्लेक्सिबल बनाते जाएंगे कि वो किसी भी माहौल में बच्चे उसको अडॉप्ट कर सकें। फिर ये कहते हैं कि स्टेट लेवल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, स्टेट लेवल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन विल बी डन थ्रू काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन. The UGC and these councils will develop coordinative methods to keep a watch on standards. तो मतलब यहाँ पे ये भी इन्होंने कहा कि अगर हमें अपने शिक्षा सिस्टम को बढ़ाना है तो जो राज्य सरकार है उसको हायर एजुकेशन के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। यही रीज़न है कि जो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखती हैं किससे, स्टेट गवर्नमेंट से। फिर ये कहते हैं कि प्रोविजंस विल बी मेड फॉर मैक्सिमम फैसिलिटीज़ एंड एडमिशंस विल बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एडमिशंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, ज़्यादा क्लासेस बनाने होंगे, ज़्यादा टीचर्स रिक्रूट करनी होंगी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ानी होंगी, हर तरीके से बुक्स बढ़ानी होगी। तो ये क्या है, ये हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा हमारे कॉलेज बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा हमारे यहाँ सीट्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। फिर रिसर्च में भी हम बेटरमेंट करेंगे और जो पढ़ाने का तरीका है उसमें भी हम चेंजेस हमेशा करते रहेंगे। फिर ये कहते हैं कि रिसर्च इन द यूनिवर्सिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड enhanced support and steps will be taken to ensure its high quality. Suitable mechanism will be set up by the UGC for coordinating research in the university, particularly in thrust areas of science and technology, with research undertaken by the other agency. An effort will be made to encourage the setting up of national research facility with the university with proper forms of autonomous management. तो मतलब जो हमारे रिसर्च फील्ड है उसको भी यहाँ पे डेवलप करने की बात कही गई है। ये कह रहे हैं कि जितनी भी रिसर्च फील्ड है उनको हम लोग कॉलेज से जोड़ेंगे और कॉलेज के बच्चे जाके वहाँ पे रिसर्च करेंगे और ऑटोनॉमस मैनेजमेंट वहाँ पे होगा, यानी कि अपने अकॉर्डिंग सारी मैनेजमेंट रिसर्च फील्ड करेगा। तो रिसर्च फील्ड बेसिकली एफिलेटेड होता है साइंस और टेक्नोलॉजी से। तो बेसिकली क्या ये कहना चाह रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है और अगर हम उसको डेवलप करेंगे तो इसका मतलब कि हमें रिसर्च फील्ड को भी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे प्रतिदिन दिन पे दिन डे बाय डे वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने रिसर्च इन इंडोलॉजी कहा है। द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल सर्विसेज विल रिसीव adequate support to fulfill the need for the synthesis of acknowledge interdisciplinary research मतलब क्या हो गया कि
कि एक मान लीजिए कि आप एजुकेशन की फील्ड में ही रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो एजुकेशन की फील्ड में रिसर्च करने के साथ साथ आपको और सारी फील्ड्स में भी रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे अकाउंट्स में भी रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, और क्या पॉलिसीज़ बनी है उसमें भी रिसर्च करना पड़ेगा, फंड्स में भी रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब जोग्राफिकल पार्ट पे भी रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब हर मैटर पे भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब हम एक फील्ड में रिसर्च करने चलते हैं तो उससे जुड़ी जो अदर फील्ड्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, ठीक है। ये क्या कहते हैं आगे कि एफर्ट्स विल बी मेड to derive into India's ancient fund of knowledge and to relate it to contemporary reality. This effort will imply the development of facility for the intensive study of Sanskrit and of the classical language. तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पास्ट में है हमारे और जो करंट जो कंटेम्प्रेरी इंडिया जो चल रहा है उन दोनों को हम लोग मिक्स करके तब रिसर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो लैंग्वेजेस थी जो छूट गई थी हमारी, जैसे संस्कृत हो गई और जो अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई, उनको भी हम डेवलप करेंगे। इसीलिए यही इन्हीं कामों के वजह से जो स्कूल लेवल है वहाँ पे संस्कृत का सब्जेक्ट इन्वॉल्व किया गया। फिर ये कहते हैं कि द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, शेयरिंग ऑफ फैसिलिटी एंड डेवलपिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, अ नेशनल बॉडी कवरिंग हायर एजुकेशन इन जनरल, एग्रीकल्चर, मेडिकल, टेक्निकल, लीगल एंड अदर प्रोफेशनल लेवल्स विल बी सेट अप। तो साथ साथ हमें रिसर्च के साथ साथ और उसके रिसर्च के साथ साथ जो अदर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च फील्ड हैं उन सारे फील्ड को डेवलप करने के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा और हमें उसके साथ साथ हमें एग्रीकल्चर में भी काम करना पड़ेगा, मेडिकल में भी काम करना पड़ेगा, टेक्निकल भी काम करना पड़ेगा, लीगल वाइज भी काम करना पड़ेगा, यानी कि हर तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही तरीके से डेवलप होने की कोशिश कर पाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी। तो ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी आप जानते हैं क्या होता है। ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी आर दोज यूनिवर्सिटी थ्रू विच चिल्ड्रन सिटिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कैन कंटिन्यू देयर स्टडी थ्रू ऑनलाइन, राइट। और बेसिकली ये जो लर्निंग होती है ये आपके प्रोफेशनल लोग करते हैं, यानी कोई अगर जॉब में है और उसको अपने स्किल को डेवलप करना है या अपने जॉब को डेवलप करना है तो दे कैन गो थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग, राइट। तो ये कहते हैं कि द ओपन लर्निंग सिस्टम हैज़ बीन इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू ऑगमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन as an instrument of democratic education and to make it a lifelong process. The flexibility and innovativeness of the open learning system are particularly suited to the diverse requirement of the citizen of a country, including those who has joined द वोकेशनल सिस्टम। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो ओपन लर्निंग सिस्टम है ये बेसिकली सारे लोगों के लिए अवेलेबल है। ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यहाँ पे हम लोग मतलब शुरुआत करेंगे जिससे कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा, यानी ये हमेशा चलता रहेगा। इसके थ्रू इंसान कभी भी पढ़ाई अपनी शुरू कर सकता है और ये जो डिस्टेंस लर्निंग है या ओपन यूनिवर्सिटी लर्निंग है इसमें हम वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू करवाएंगे, जिससे कि डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू लोग अपने जो स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो क्या कह लेते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं उनको भी वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन 1995 इन फुलफिलमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली जो द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग इग्नू कहते हैं, इसने ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया, ठीक है।
और डिस्टेंस लर्निंग की शुरुआत इसने की। फिर ये कहते हैं कि द नेशनल ओपन स्कूल विल बी स्ट्रेंथन एंड ओपन learning facility extended in a phased manner at the secondary level in all parts of the country। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द नेशनल ओपन स्कूल, जो नेशनल ओपन स्कूल होते हैं वो भी ओपन लर्निंग की फैसिलिटी को शुरू करेंगे, जिससे कि उनका भी जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे कहते हैं डिलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स, यानी कि जो जॉब में हैं और अगर वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपना कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। अ बिगनिंग विल बी मेड इन डी लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स इन सेलेक्टेड एरियाज। द प्रपोज्ड कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, टीचिंग एक्सेट्रा। ठीक है। Similarly, the services of specialists with academic qualification in the humanities, social science will continue to be required in various job position। तो यहाँ पे जो ऊपर के जो कोर्सेज बताए गए हैं उनके लिए यहाँ पे मतलब कह लीजिए कि बहुत कम कोर्सेज हैं या ना के बराबर कोर्सेज हैं डिस्टेंस लर्निंग में, बट people who are pursuing humanities or social science or science, they can go through this distance learning, right? फिर ये कहते हैं कि de-linking will be applied in services for which the university degree need to be necessary qualification. Its implementation will lead to a refashioning of job-specific courses and afford greater justice to those candidates who, despite being equipped for a given job, are unable to get it because of an unnecessary prefer to graduate candidates। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, जॉब नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ ग्रेजुएटेड होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे भी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनको हम प्रेफरेंस देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेफरेंस सबको मिलेगा, चाहे वो जॉब कर रहा हो चाहे वो ग्रेजुएट हो सिर्फ। ठीक है। तो ये सब कुछ था आपका ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस लर्निंग के लिए। अब कल हम लोग शुरू करेंगे आपका रूरल यूनिवर्सिटी। ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई है। एंड गो थ्रू द नोट्स, राइट, एंड लिसन टू द लेक्चर केयरफुली and answer the questions which will be providing in the link. Thank you class. Take care.